are you all? I hope you all are very good at your home. So dear students, this is Rahul Nilatkar. I am again back for completion of the chapter Federalism. Yes. So dear students, I hope you must have seen the last video and you must have noted the important points and you must have understood the topics discussed in the last video. So dear students, in the last video we discussed about the coming together federalism and holding together federalism. We have seen that what makes India a federal country, union list, we have seen state list, and we have seen the concurrent list. We have seen the explanation with the help of various slides in the last video. So today, while discussing about the federalism or the federal country, so how is federalism practiced in India? This part we are going to deal with today and another subtopics related to this part. So dear students, see over here, when we talk about the federalism, so some basic pillars are there, or we can say some framework is there where we can say India is a federal country. You can see in this map, India in 1947, various different states are there. You may find the difference between the 2020's map and 1947's map. After the independence, various states were created based on the languages. Okay, so that only we are going to see now in this video, and some another points also we are going to see. Let's start. Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideas in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. So dear students, what is said over here, see, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि इंडियन फेडरलिज्म का रियल सक्सेस का के ऊपर है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉलो हो रहा है. स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म हमारे कंट्री में जो फेडरलिज्म का स्पिरिट, जिस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. वी हैव द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर. यस, desire is also required for living together, and that's the reason we can say the Indian federalism is successful. Now first see linguistic states. The creation of linguistic states was the linguistic states का मतलब है लैंग्वेज के हिसाब से जो भाषा लोग, जिस प्रादेशिक भाषा जो है, मतलब जिस प्रदेश में जो लोग जो भाषा बोल रहे हैं उसके हिसाब से स्टेट्स को बनाया गया. ओके, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स was the first and major test for democratic politics in our country. If you look at the political map of India, where it began its journey as democracy in 1947 and that of 2013 दिया है यहाँ पे. 20 का हम बात करेंगे. 20, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and names of the states have been changed. तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर हम बात करेंगे मैप की 1947 में, देखो किस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंडिया था, और किस तरीके से पहले के स्टेट्स कुछ थे, कुछ उसमें से स्टेट्स कम किए गए, कुछ स्टेट्स नए बनाए गए. और अभी का अगर हम बोलेंगे तो ये 2013 का बोला है हमारे इस वाले बुक में. 2013 का दिया है. आप 20 का देख सकते हो कि 20 का भी मैप आपको दिख रहा होगा. आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टेट्स में कन्वर्जन हुआ है. 20 के मैप में सिर्फ एक ही बदलाव आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि जो लास्ट ईयर जो चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो चेंज आपको इसमें दिखेगा, वरना 20 का मैप ये 2013 के मैप के जैसा ही है. ओके, सो दिस इज व्हाट. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं. सो मैप में आपको चेंजेस दिखेंगे. इसके ऊपर डिस्कशन क्यों चल रहा है? सेकंड पॉइंट वही है कि
लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी, मतलब किस तरीके से स्टेट्स बनाए गए, स्टेट्स बनाने की पॉलिसीज कैसी थी लैंग्वेज के बेस पे। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। बहुत सारे बाउंड्रीज को चेंज किया गया नए स्टेट्स को बनाने के लिए। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, इथनिसिटी और जोग्राफी। जोग्राफिकल एरिया जो है वहाँ पे स्पेसिफिक जो कल्चर है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसलिए कुछ स्टेट बनाए गए। और मैक्सिमम स्टेट्स लैंग्वेज के ऊपर बनाए गए कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक प्रांत में रह सके, इस तरीके से वो स्टेट्स बनाए गए। मोस्टली स्टेट्स लैंग्वेज के हिसाब से बनाए गए, कुछ स्टेट जोग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रख के अलग तरीके से बनाए गए। अब जो जोग्राफिकल कंडीशन और कल्चर, वहाँ पे जो कल्चर प्रैक्टिस होता है उसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टेट्स बनाए गए उसमें थे, दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके, so this was the linguistic this is what it is given in the linguistic states. Apart from this, what challenges were there, let's have a look. Okay, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कुछ लोगों को लगा कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा अगर हम लैंग्वेज के ऊपर से स्टेट्स को बनाए तो, लेकिन बाद में ऐसा पाया गया कि वो सक्सेसफुल रहा इंडिया में। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. Yes, अगर हम सही में अगर बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म होने की वजह से कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का उल्टा अच्छा हो गया। और पहले जिन लोगों का भी ऐसा अपोज था शुरू में कि भाई इसकी वजह से कंट्री के अंदर एकता की भावना नहीं रहेगी, तो वो उनका भी ओपिनियन जो था वो चेंज हो गया और कंट्री में अच्छे से लोग रहने लगे और उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या रहा, इफेक्टिव रहा। सो दिस इज व्हाट द स्टेट पॉलिसी विच वी डिस्कस्ड नाउ। ओके, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पॉलिसी हम देख रहे हैं इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, तो उसका पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी हम देख रहे हैं। ओके, बाद में लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज को भी महत्व देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो अगर हम 1947 की बात करेंगे तो उस वक्त की कंडीशन को देख के किस तरीके से लैंग्वेजेस होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी लग रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। तो देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी क्या डिसाइड की गई। अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस कोई भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता है। ओके, नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस कोई भी एक लैंग्वेज को नहीं देता है। आप अंडरलाइन करो इस सेंटेंस को, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। ओके, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको बहुत बार सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द नेशनल लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स? सो इट इज फॉल्स। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हिंदी को दिया गया लेकिन नेशनल लैंग्वेज का नहीं दिया गया। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, देयरफॉर देयर वेर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। अब 40% लोगों की हिंदी मातृभाषा थी तो बाकी के जो लैंग्वेजेस थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए, सेफ गार्ड अदर लैंग्वेजेस। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस है जिसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया कि वो पर्टिकुलर स्टेट की बोलो या पर्टिकुलर लैंग्वेज रहेगी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की। अ कैंडिडेट इज इन एन examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. Yes, ये 21 लैंग्वेज की जो बात यहाँ पे की गई हिंदी के अलावा, क्योंकि 40% लोगों की हिंदी भाषा थी, तो 21 अदर लैंग्वेजेस की जो यहाँ पे बात की गई, ये 21 अदर लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके अभी स्टूडेंट जो है एग्जाम दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस की। सो स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यस, हर एक स्टेट की अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है जो वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है और वहाँ पे का उस स्टेट में का जो वर्किंग है वो पर्टिकुलर उस ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. ओके, सो क्या हुआ ना कि श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है वहाँ पे इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द लैंग्वेजेस एंड ऑल व्हाट प्रॉब्लम दे वर फेसिंग. सो उस तरीके से हमारे इंडिया में नहीं हुआ. बहुत ही ध्यान दे के लैंग्वेजेस पॉलिसीज को अपनाया गया ताकि हर एक लोगों को रिकॉग्नाइजेशन उसमें दिया जाए, हर एक व्यक्ति को लगे कि नहीं भाई मेरी भी लैंग्वेज कहीं ना कहीं पे मायने रखती है. सो इस तरीके से सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965. ऐसा डिसाइड किया गया था 1965 में कि ऑफिशियल पर्पजेस के लिए इंग्लिश का यूज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का बंद किया जाए. लेकिन क्या हुआ देखते हैं. हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ हिंदी कंटिन्यू. ओके, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी उस वक्त. तो अभी भी देखते हैं हम, अगर आप साउथ साइड में गए तो मोस्टली आपको वहाँ पे लोगों को जल्दी हिंदी भी समझ में नहीं आती. अभी अभी बहुत सारा बदलाव हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो सो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं इंग्लिश को स्टॉप मत करो क्योंकि हर जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती थी. सो इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू the use of English along with Hindi for official purposes. So 1965 में जो प्रपोजल था कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ऐसे ही जिसे तमिलनाडु का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो ऐसे स्टेट्स की वजह से कुछ लोगों ने बहुत सारी मूवमेंट्स उसके लिए की कि हम लोगों को पूरे तरीके से हिंदी नहीं आती है और आप सारा ऑफिशियल वर्क मोस्टली इंग्लिश का बंद कर देंगे तो कैसे होगा. तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया, इसके लिए फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को रिकॉग्नाइज किया था, तो इसके लिए फिर इंग्लिश कंटिन्यू करने दिया गया. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एग्री ऑन द पॉइंट्स रेज्ड बाय द अदर स्टेट्स वेयर दे वर नॉट यूजिंग हिंदी लैंग्वेज एंड दे वर यूज्ड टू विद इंग्लिश, एंड दैट्स द रीजन इंग्लिश government was agree to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Many critics think that this solution favored the English speaking elite. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता कि ये इसकी वजह से हिंदी की महत्ता कम हुई या इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया गया, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रिटिक्स को ऐसा लगता है. और वो ऐसा नहीं था, उस वक्त की ज़रूरत को देख के वो डिसीजन लिया गया. आई बात ध्यान में. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Yes, हिंदी का प्रमोशन करना ये गवर्नमेंट का शुरू ही रहा. हालांकि उन्होंने परमिशन दी इंग्लिश में भी ऑफिशियली वर्क हो इसके लिए, जैसा कि हमने देखा पिछले पैराग्राफ में. लेकिन उन्होंने जो कहे ऑफिशियल पॉलिसी हिंदी को कंटिन्यू करना शुरू किया, हिंदी को प्रमोट किया. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country avoid the kind of situations for Sri Lanka finds itself in. श्रीलंका में हमने देखा कि लैंग्वेजेस की वजह से उनके बीच में कितने सारे क्लैशेस थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट की तो हिंदी को प्रमोट किया, लेकिन ऐसा कंपल्शन नहीं किया. आई बात ध्यान में. उन्होंने ऐसा लोगों के ऊपर दबाव नहीं डाला कि आपको हिंदी ही यूज करनी है, ऐसा दबाव नहीं डाला. देखा हमने तमिलनाडु के केस में कि किस तरीके से उनकी प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया, उनके सिचुएशन को समझ लिया गवर्नमेंट ने और फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई. अब ऐसा नहीं था कि हिंदी को प्रमोट कर रहे, मतलब जो स्टेट्स है वो अपनी खुद की जो लैंग्वेज है, उनकी रीजनल लैंग्वेज जो है स्टेट की, उसका इस्तेमाल स्टेट्स नहीं कर सकते, ऐसा नहीं था. द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन. यहाँ पे ये मुद्दा क्लियर होता है कि किस तरीके से हमारे स्टेट्स में फ्लेक्सिबल वातावरण रखने की वजह से, लैंग्वेज पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखने की वजह से क्लैशेस बहुत सारे अवॉइड किए गए, स्टेट्स को उनके लैंग्वेज में भी वर्किंग करने का अधिकार दिया गया. सो दिस इज व्हाट dear students, language policy which makes the India as the federal country, okay, which makes the Indian federalism the strong nation when we can see. Now let's see the another important feature, center state relationship. Yes, so let's start discussing about that. Restructuring the central state relations is one more way in which federalism
has been strengthened in practice. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. Yes. Restructuring the central state relations is one way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends on large extent on how the ruling parties and leaders follow the arrangements. तो ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना. हमने ये भी देखा किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, कुछ अधिकार उनके दायरे में भी रखे हुए हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हमने देखा है पिछले वीडियो में. अब देखो, जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो देखते हैं तो उनके सारे पॉइंट्स क्लियर रहते हैं, तो अगले वीडियो में क्या उनको समझ में आता होगा. कुछ स्टूडेंट्स वीडियोस देखते ही नहीं होंगे और उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ ठीक है देख लेंगे बाद में, और बाद में देखते ही नहीं होंगे, तो दे विल फेस द प्रॉब्लम. ओके बेटा, सो यू हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ हैबिट्स ऑफ स्किपिंग द कंटेंट. सो हम क्या बात कर rहे थे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. तो गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पे वो होगा, गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आएंगी उनकी क्या पॉलिसीज है, किस तरीके से वो अप्लाई करते हैं, उस तरीके से वो रिलेशनशिप रहेगी. वही बोला यहाँ पे उन्होंने, रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो द अरेंजमेंट्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड in most of the states. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. तो यहाँ पे ऐसा क्या बोला गया, देखो इस पैराग्राफ में ऐसा बताया है, इस पैराग्राफ में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्पेसिफिक पार्टी का रूलिंग है और उनकी ही गवर्नमेंट स्टेट में भी है तो उनका ट्यूनिंग अच्छा रहेगा. लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया, हम 1990s के पहले की बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया और ऐसा देखा जाता है कि सेंट्रल में कोई अगर पार्टी है, रूलिंग पार्टी, मान लेते हैं सेंट्रल में पार्टी ए रूलिंग पार्टी है, और स्टेट में कोई स्पेसिफिक स्टेट मान लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट में पार्टी बी रूलिंग पार्टी है, तो ऐसा देखा जाता था कि पार्टी ए जो है उनकी गवर्नमेंट नहीं है ना, पार्टी बी की गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, तो थोड़ा सा डोमिनेशन करने की कोशिश की जाती थी. लेकिन ये सब बंद हुआ या कम हुआ, जिसको हम बोलेंगे 1990s के बाद में. वो यहाँ बोला है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. This period saw the rise of the regional political parties in many states of the country. बहुत सारे स्टेट्स में कंट्री के बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी. पहले कैसी गिनी चुनी पार्टीज थी ना इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इसलिए वैसा होता था. लेकिन बाद में बहुत सारी रीजनल पार्टीज उभर के आई, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने वाली. बोला रीजनल पार्टीज, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने वाली ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसको बोलेंगे कि आपको समझने के लिए मैंने वैसा बोला था, लेकिन जिसको हम बोलेंगे कि रीजनल पार्टीज वहाँ पे बहुत सारी एस्टैब्लिश हुई. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में आपको पता है कि जब क्या होता है, जब कोई एक स्पेसिफिक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो अलग अलग पार्टीज इकट्ठा आती है और वो इकट्ठा आके क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है. तो उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिजन गवर्नमेंट. इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट. नाउ द गवर्नमेंट विच इज द रूलिंग गवर्नमेंट इन द महाराष्ट्र स्टेट इज द कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ द 3 डिफरेंट पार्टीज. ओके, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड शिवसेना एंड महाराष्ट्र, नो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना and this Rashtravadi Congress. These 3 different parties, Indian National Congress, शिवसेना एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों पार्टी की मिला के गवर्नमेंट है इंडिया में. अभी तो इंडिया में नहीं, सॉरी, स्टेट में इन तीनों पार्टी की मिला के अभी गवर्नमेंट है स्टेट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट. ओके, जो महाराष्ट्र स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र स्टेट में कोलिजन गवर्नमेंट है अभी, ठीक है ना.
at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. Yes. तो क्या बोला है कि जब भी कोई रीजनल पार्टी अगर उभर के आई और अगर हम सेंट्रल इलेक्शंस की बात करेंगे, सो उस वक्त क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं और वो रीजनल पार्टी का वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाने के लिए स्पेसिफिक सीट्स चाहिए, तो उनको रीजनल पार्टी को भी साथ में लेना पड़ा और कोलिजन गवर्नमेंट्स बनानी पड़ी. वो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. This trend was supported by this trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ तो तब शुरुआती के दौर में वैसा नहीं था. अभी बहुत अच्छे से पावर शेयर की जा रही है रीजनल पार्टीज की वजह से बोलो या जो कोलिजन गवर्नमेंट की जो एक कंसेप्ट न्यू बनी उसकी वजह से बोलो, बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग फॉलो हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट का भी एक इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट दैट सपोर्टेड बाय मेजर जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्ररी मैनर. यस, सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट dismiss the state governments. So this is what, in this way, it is also the important policy. Okay, so we have seen about the language policy. ओके एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप. तो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए. अब यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है, आप सब लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे. द स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर. यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेडी दिखाई गई है, सिंबॉलिक लेडी है. आप पहचान सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज में की लेडी है, पावर ऑफ द स्टेट्स. और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो लेडी है, और ये व्यक्ति जो है शेफ के जैसा बताया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे ये बाकी के सारे लोग जो खड़े हैं ये स्टेट्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. तो स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर, और पावर दो हमको, इसके लिए स्टेट स्प्लिट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, भीख मांग रहे हैं जिस तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है ना. तो ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे. दे आर बेगिंग फॉर, आई कैन से दे आर बेगिंग फॉर द मोर पावर. ओके, सो ये 1990s के पहले की सिचुएशन हम बोल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. सो बहुत से बार ऐसे कार्टून आते हैं. फ्रॉम लास्ट ईयर द पैटर्न हैज बीन चेंज फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड यू ऑल आर नोइंग दैट वेरियस डिफरेंट कार्टून्स may come in the examination and they may ask you that from where the cartoon has been taken and what is explained in the cartoon, what is symbolized in the cartoon. In that way questions can be asked. So this is important. You can see this cartoon and think on that. Okay, now see here also coalition government. Now we have discussed about the coalition government. अब यहाँ पे coalition government का एग्जाम्पल देते हुए ये भी एक मेन लीडर को रिप्रेजेंट कर रही है फिगर. coalition government दिख रहा है आपको बाजू में. ओके, पेरिल्स ऑफ द रनिंग कोलिजन गवर्नमेंट. अब कोलिजन गवर्नमेंट में दिख रहा है आपको यहाँ पे भी अलग अलग चेहरे दिखाए गए हैं, अलग अलग पार्टी के सिम्बॉल्स भी दिए हैं, और यहाँ पे भी अलग अलग पार्टी के सिम्बॉल दिए हुए आप देख सकते हो. बीजेपी का सिंबल शायद दिख रहा है वो. सो बेटा ऐसे तो यहाँ पे इस कार्टून में बताने की कोशिश की है कि कोलिजन गवर्नमेंट बनाते बनाते भी कितनी तकलीफ होती है ना. क्योंकि अगर आप कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए जा रहे हो तो आपको सारे पार्टीज के लीडर्स की बात सुननी पड़ेगी, सबको जो जो अधिकार चाहिए वो उनको देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी कोलिजन गवर्नमेंट जो है बनेगी. अदरवाइज दे कैन से दैट वी आर गोइंग टू रिमूव द सपोर्ट. यस, सो इस तरीके से ये कोलिजन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है. दोनों भी कार्टून इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं. ओके, नीचे क्वेश्चन भी है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में. हियर आर 2 कार्टून शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. शुड द स्टेट गो टू द सेंटर विद द बेगिंग बाउल? शुड दे गो विद द बेगिंग बाउल? हाउ कैन द लीडर ऑफ द कोलिजन कीप द पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड? यहाँ पे वही बताने की कोशिश की कि जो कोलिजन गवर्नमेंट का लीडर है पार्टनर्स को सेटिस्फाइड कैसे रखे, और स्टेट्स ने सेंटर के बाद जाना चाहिए क्या बेगिंग बाउल्स लेके. डिस्कशन हमने किया हुआ है, आप खुद भी डिस्कस कर सकते हो. उसके बारे में आपको कुछ बताना है तो आप टीचर्स को या मुझको कांटेक्ट करके बात कर सकते हो,
ठीक है. So are you suggesting that regionalism is good for our democracy? Are you serious? So वहाँ पे कार्टून ने सवाल पूछा है, आप डिस्कस कीजिए उस पर कि सही में ज़रूरी है कि ऑलरेडी हमने लैंग्वेज पॉलिसी देखी ही है. ठीक है ना. सी डियर स्टूडेंट्स, in political science particularly, you should have the habit to write the points in your own. Many of the times the application based questions are asked from political science only. So you should understand the concept, and you should be able to write in your own language. You should be able to express in your own language whatever is asked in the question. Okay. लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का एक चार्ट दिया हुआ है. यहाँ पे हम देख सकते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर. आप देख रहे हैं वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज दिख रहे, अलग अलग लैंग्वेजेस है और कितने कितने परसेंट लोग वो बोलने वाले, उनका प्रोपोर्शन वहाँ पे दिया हुआ है. ओके. मराठी का देखो 6.99% है और बाकी की भी लैंग्वेजेस है, संस्कृत, सिंधी, तमिल एंड ऑल. ये शायद अभी अपग्रेड भी हो गया होगा, आपकी बुक में अपग्रेडेड है क्या, एक बार आप चेक कर लीजिएगा. ओके. ओके. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको आपको रीड करना है और अलग होगा तो उसको रीड करना है कि कितने कितने परसेंट में. अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा चार्ट आएगा क्या, इस पे सवाल आ सकते हैं क्या. So up till now we didn't get any guidelines whether the chart will come or what. Okay, but you should read this part. Okay. Now the important point is there of this chapter. Another point is which we are going to see about now is decentralization in India. Before that, you can see, read the following excerpts from an article by noted historian Ramachandra Guha that appeared in the Times of India on November 1, 2006. So you have to read these articles and you have to try to understand, interpret about that, what is told in this article. इसमें से क्या समझ में आ रहा है हमको, वो आप खुद आप रीड कीजिए इन सारे आर्टिकल्स को. इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन कीजिए. ओके. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है किस तरीके से इंडियन फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ और किस तरीके से उसमें अपग्रेडेशन हुए और उसके बारे में ही जानकारी दी हुई है. ओके. सो example, take the example of your own state or any other state that was affected by linguistic or reorganization. Write a short note for or against the argument given by the author here on the basis of that example. मतलब अब आप देखो, every coin has two sides, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई तो पॉजिटिव क्या साइड है, नेगेटिव क्या साइड है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है. सो यू हैव टू सी दैट. ओके. Now see, our important point, next part from the lesson is decentralization in India. Now before moving towards the concept of decentralization, I would suggest you to read the textbook, read the important points from the lesson, read all the boxes from the lesson. This is the last topic from the lesson, decentralization in India. Okay. So let's start with the decentralization in India. You should read the earlier part once. We noted above that federal governments have two or more tiers of governments. We have so far discussed the two tiers of government in our country. But a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. Indian states की बात करेंगे तो यूरोप में के इंडिपेंडेंट कंट्रीज जितने बड़े हैं उतने लार्ज इंडिया में स्टेट है. आई बात ध्यान में. तो ये वास्ट कंट्री है इंडिया. ओके. तो ये इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, तो दो टायर से ही रन होंगी क्या. दो टायर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों से ही रन होंगी क्या. इसको थर्ड टायर भी लगेगा. लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स भी लगेंगी. तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया. Maharashtra is about as big as Germany. देख रहे हो आप, उत्तर प्रदेश is bigger than Russia in terms of population and Maharashtra is also about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse and states are also internally diverse. States में internally diversity देखने को मिलती है. इंडिया में तो है ही,
लेकिन एक स्टेट में भी आपको अलग अलग लोग रहने वाले दिखते हैं. There is thus a need for power sharing within these states, and that's the reason it is also essential that not only power should not only shared with the central and the state government, but interior of the states के अंदर भी power share की जानी चाहिए. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This is the rationale for decentralization of power. Thus, resulted a third tier of government called local government. And this need only gave the third tier of government, which is called as the local गवर्नमेंट. क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री है और स्टेट के स्टेट में भी आपको रीजनल डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है. एंड दैट्स द रीजन फॉर रनिंग स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री द थर्ड टायर नीडेड विच इज कॉल्ड एज द local government. You all are knowing that municipal corporations, panchayat samiti and all you have seen in the lower classes. Okay, now see, when power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. What is decentralization of power? In these terms of civics, we can say that when power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जब पावर ली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को जब पावर दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो लोकल लेवल पे अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं. जैसा कि हम देखते हैं कोई हमारे यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड मेंबर्स होते हैं और एंड दे कम टू आस्क अबाउट द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम. यस, सो लोकल प्रॉब्लम कुछ लोकल प्रॉब्लम लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो, ये उसके पीछे का उद्देश्य था और इसलिए फिर जो थर्ड टायर लोकल गवर्नमेंट का भी बनाया गया. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज. दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज और ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेक्टिवली. वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होती है कि हमारे सिटी में क्या करना चाहिए. अब अकोला की बात करेंगे तो अकोला में जो रहने वाला व्यक्ति है उसको पता है कि अकोला में सही में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे क्या सुधारना करनी चाहिए, कौन सी एरिया में क्या इसेंशियल है, कौन सी चीज़ का लैक्यूना यहाँ पे है. तो वहाँ के व्यक्ति को वो क्लियरली पता रहेगा और कैसा कौन सी इस पर पैसा स्पेंड करना चाहिए. बराबर है ना. तो इसके लिए फिर लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. Yes. और यहाँ पे क्या होएगा, अगर लोकल लेवल पे अगर हम गवर्नमेंट ला रहे हैं तो लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आ जाएगा काय में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कोई डिसीजन लेना है उस सिटी के बारे में, तो लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकेंगे. लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट रही तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जा सकेंगे, बोल सकेंगे. आपको याद होगा 6 स्टैंडर्ड में हमने देखा है ना. 6 स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि एग्जाम्पल इस तरीके से कैसे वार्ड में प्रॉब्लम होता है, फिर वार्ड मेंबर के पास में जाके वो सॉल्व किया जाता है. आपको याद होगा पंचायत राज लेसन तो, है ना. सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. इससे क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हैबिट बढ़ेंगी. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. Yes, local government एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट वे है लोगों को रियलाइज करवाने का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का. मतलब वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोगों के द्वारा गवर्न की जाने वाली लोकल गवर्नमेंट. तो लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ेगा. अब हर एक व्यक्ति तो सेंट्रल में नहीं जा सकता है ना. दिस इज वॉट the need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the levels of villages and towns. जब से ज़रूरत ऐसे ध्यान में आया कि ज़रूरत है भाई कि हमारे कंट्री में क्या किया जाना चाहिए, लोकल लेवल पे हमारे कंट्री में पावर डिवाइड की जानी चाहिए, तब से उसके ऊपर वर्क हो रहा है. टाउन्स की बात करेंगे, विलेजेस की बात करेंगे तो पंचायत इन द villages and municipalities in urban areas were set up in all the states. So in all the states, panchayats and urban areas, municipalities and panchayats were set according to the population of the city.
बट दीज वेर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. किसके कंट्रोल में थे? स्टेट गवर्नमेंट के. इलेक्शंस टू these local governments were not held regularly. Local governments did not have any powers or resources of their own. Thus, there was very little decentralization in effective terms. A major step towards decentralization was taken in 1992. Underline that. A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. तो पहले इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव नहीं था. लोकल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेट्स के अंडर थी. अब स्टेट्स के अंडर है, उसमें उसके उसके पास में खुद के कुछ अलग अधिकार नहीं थे. लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलो, म्यूनिसिपलिटी बोलो, या पंचायत समिति बोलो, या पंचायत राज की बात करेंगे तो मतलब ग्राम पंचायत बोलो जिसको हम बोलेंगे. सो उनको इतने अपने खुद के अधिकार दिए नहीं थे. इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली. उनके इलेक्शंस भी रेगुलर नहीं होते थे. एंड दे वेर द सबऑर्डिनेट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो 1992 में इसके ऊपर डिसीजन लिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. डेमोक्रेसी का थर्ड टायर बहुत अच्छा पावरफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए. Now what changes? See, now what is after that? Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. अब क्या है? उस अमेंडमेंट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटरी है आपको कि रेगुलर इलेक्शंस आपने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लेने चाहिए. रेगुलर इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज आर मैंडेटरी टू बी कंडक्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. Another point, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. So reservation was given. Okay, seats are reserved in the elected bodies. Whosoever will be elected in the local state government, local government, we can say local self government or local government, whosoever will be elected, the seats are in that category. The seats are reserved for the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes people. SC, ST, and OBC people seats are reserved in the local government. At least 1/3 of all positions are reserved for women. उसमें से 1/3 positions महिलाओं के लिए रिजर्व होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट में. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election. Independent institution अलग से बनाया गया जिसको नाम दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन. हर एक स्टेट में अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन. पंचायत समिति के इलेक्शन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस इसको कंडक्ट करने के लिए अलग से एक स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन वी कैन सी हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन. फॉर द कंडक्शन ऑफ पंचायत एंड द म्यूनिसिपल इलेक्शंस, ओके, independent commission was set up, okay, conduct the panchayat and municipal elections. The state government are required to share some powers and revenue with the local government bodies. स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी किया गया कि कुछ उनके जो अधिकार है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करे और रिवेन्यू भी शेयर करे. ओके, इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? इलेक्शन कंडक्ट करने का. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया है कि रिवेन्यू भी डिवाइड किया जाए लोकल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का. द नेचर ऑफ द शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अब कौन से स्टेट में कितने पावर लोकल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे और कितना रिवेन्यू कलेक्शन कौन सा उनको मिलेगा, ये वेराई करेगा स्टेट टू स्टेट, उस स्टेट पे डिपेंड रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थर्ड टायर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. नाउ सी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेनी ऑफ द टाइम क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन दैट व्हाट आर द चेंजेस मेड इन द थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी, और वी कैन से what are the changes made in the local government after 1992. So these all are the points which you have to write in the answer. Okay, and how the local government works. For that also you can use these points. What are the points I explained now?
constitutionally mandatory to hold election and all these points. Reservation in the seats for the various caste people, 1/3 seats reserved for women. Okay, independent election commission, some power are to be shared by the state, etc. And revenue collection even is to be distributed or shared. Now see the next part. Rural local government is popularly known by the name Panchayat Raj. Name is Panchayat Raj. Each village or a group of villages in some states have a Gram Panchayat. This is a council consisting of several ward members. ग्राम पंचायत होती है छोटे छोटे खेड़ों में, आपको पता है अलग अलग वार्ड मेंबर्स की मिला के पंचायत मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स को पंच बोलते हैं. उसमें ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच. और जो उसमें का हेड होगा, पंच उनका जो हेड है उसको बोलेंगे सरपंच, और प्रेसिडेंट उनका इंग्लिश में बात करेंगे तो. सो दिस इज व्हाट द ग्राम पंचायत इज. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड. उस वार्ड में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग होंगे वो सारे उसका इलेक्शन कंडक्ट करेंगे. कंडक्ट करेंगे मतलब इलेक्शन में वोट करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन में वोट करेंगे. सो ऑल द एडल्ट विल वोट इन द इलेक्शन. ओके, it is the decision, sorry, in this government we can see that lot of people are getting participation. You can see while discussing only. It is the decision making body for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of gram sabha. ग्राम सभा के सुपरविजन में पंचायत वर्क करती है. ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स. कौन मेंबर होते हैं ग्राम सभा के? जितने लोगों ने वोटिंग किया वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा एंड ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स. इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट. साल में 2 या 3 बार ये ग्राम सभा की मीटिंग होती है. सारे जो वोटर्स है, ग्राम सभा के मेंबर है, हमने देखा अभी, इनकी मीटिंग होती है 2-3 बार साल में. एनुअल बजट जो है, कहाँ पे कितना मनी स्पेंड करना है, क्या उसके बारे में सब डिस्कशन उसमें होता है एनुअल बजट के ऊपर ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत एंड इवन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, व्हाट वाज हैपेंड अर्लियर एंड all the points are discussed in that. The local government structure goes right up to the district level. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल. अंडरलाइन करेंगे इसको. पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल ये कैसा होता है? अलग अलग ग्राम पंचायत का मिला के फिर पंचायत समिति बनेगी. उस पंचायत समिति के अंडर अलग अलग ग्राम पंचायत आएगी. इन अकोला इवन यू मस्ट हैव सीन द ऑफिस ऑफ पंचायत समिति. You must have seen the office of Panchayat Samiti. Yes, Panchayat Samiti. You must have seen that. When you go to Gandhi Road or what, there you must have seen the office of Panchayat Samiti in Akola. Yes. Now see, a few gram panchayats are grouped together to form what is usually called Panchayat Samiti और ब्लॉक और मंडल. अलग अलग ग्राम पंचायत मिला के फिर पंचायत समिति बनती है. ओके. अब अकोला की पंचायत समिति के अंदर अकोला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस है वो पंचायत समिति के, अकोला की पंचायत समिति के अंदर वहाँ की ग्राम पंचायत आएगी. द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया. अभी जो इलेक्टेड बॉडी के मेंबर्स हैं उस एरिया के सारे लोगों ने मिलकर उनको इलेक्ट करके दिया है. ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद. जिला परिषद में क्या क्या आएगा? जिला परिषद में सब आएगा. काय काय को बोलेंगे? अंडरलाइन करो. ऑल द पंचायत समितिस और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर. पंचायत समिति, जितने भी पंचायत समिति है, मंडल है, डिस्ट्रिक्ट में के सारे, डिस्ट्रिक्ट टुगेदर, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद. ये सब मिला के जिला परिषद बनेंगी. ओके. मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड. जिला परिषद की ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं. उनका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स. सो जो एमएलएस होते हैं और बाकी की जो ऑफिशियल बॉडीज होते हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं.
Zilla Parishad chairperson is the political head of Zilla Parishad. Underline this point also in your textbook, beta. Who is the political head of the Zilla Parishad? Zilla Parishad chairperson. Whosoever is the chairperson of the Zilla Parishad is the political head of Zilla Parishad. आपको ध्यान में आया होगा जिला परिषद कैसे बनती है, पंचायत समिति कैसे बनती है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बेटा. Now see, similarly, local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns. Towns में municipalities, छोटे villages में ग्राम पंचायत, towns में municipalities. Big cities अगर हम बात करेंगे are constituted into municipal corporation. बड़े बड़े cities में municipal corporation होता है. Okay. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representative. Yes. म्यूनसिपलिटीज बोलो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलो, इसको कंट्रोल लोगों ने चुन के जिनको भेजा है वही लोग उसको कंट्रोल करते हैं. म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपलिटी. म्यूनसिपलिटी का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? म्यूनसिपल चेयरपर्सन. ओके. इन ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर. क्या बोलते हैं इसको? मेयर बोलते हैं. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसे ऑफिसर को हम मेयर बोलते हैं. ओके. लोगों ने जिसको चुन के दिया है और वो मुखिया बना है, मेयर. महापौर एंड ऑल वी कैन से, उप महापौर एंड महापौर. ओके. नाउ दिस इज व्हाट अबाउट द municipality and municipal corporation. Okay, so in this way we have discussed about the decentralization of power and third tier of government called as local government. Now an experiment in Brazil, this is given over here. How many people in Brazil get to participate in making the budget for their own city? That is what is given over here. This box you have to read, you have to underline the important points given in the box. Okay. क्या बोला यहाँ पे देखो, सिटी कॉल्ड पोर्टो Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy. The city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decisions for their city. The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city. The city is divided into many sectors or what we call wards. Each ward has a meeting like that of the Gram Sabha in which anyone living in that area can participate. There are some meetings to discuss issues that affect the entire city. Any citizen of the city can participate in those meetings. The budget of the city is discussed in these meetings. The proposals are put to the municipality that takes a final decision about it. तो क्या बोला है, ब्राजील में उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेरिमेंट किया, डिसेंट्रलाइजेशन विद पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने तैयार किया जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे, अपने अपने वार्ड में मीटिंग लेंगे और वो सजेस्ट करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वर्किंग के लिए, उनके फाइनल डिसीजन उसके ऊपर लेने के लिए उनको बोलेंगे, खुद प्रपोजल रखेंगे, डिस्कस करेंगे. मतलब क्या किया गया यहाँ पे, लोगों को एक्टिव किया गया. पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की जो बात हमने बोली है उसका वो एग्जाम्पल वहाँ पे ब्राजील का यहाँ पे दिया है. उन्होंने खुद वहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए जिस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह चलती है, अपनी खुद की अलग वहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई. About 20,000 people participate in this decision making exercise every year. This method has ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live. Buses now run to the poor colonies and builders cannot evict slum dwellers without resettling them. In our own country, a similar experiment has taken place in some areas in Kerala. Ordinary people have participated in making a plan for the development of their ओन लोकेलिटी. तो देखो केरला का एग्जांपल यहाँ पे दिया, हमारे कंट्री में भी केरला में ऑर्डिनरी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपने खुद के कंट्री को लोकेलिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया. तो यहाँ पे एक बात ऐसी देखी गई कि इसकी वजह से क्या फायदा हुआ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट. सो वी कैन से हियर the buses now run to the poor colonies. Buses were not running to the poor colonies, and the builders they have to now think before building anything in the slum areas, and they have to give them the other place to live, these
people those who are living in the slum areas. To them the builders have to give the another place to live. Okay, एंड ओनली द जो रिच लोग हैं उनकी कॉलोनीज डेवलप नहीं होते हैं तो अभी सब एरिया डेवलप होता है. तो ऐसा ही एग्जांपल ब्राजील का यहाँ पे दिया गया जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एग्जांपल है. कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है लेकिन उसमें लोगों की पार्टिसिपेट करने की इच्छा जो है वो होनी चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो नाउ सी वी आर इन द लास्ट फेज ऑफ द चैप्टर. दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. 36 lakh elected representatives पंचायत म्यूनसिपलिटीज के अभी तक के हुए हैं कंट्रीज में, और जिसको बोलेंगे कंट्रीज में अभी तक के है अपने इंडिया की बात अगर की जाए तो. और दिस नंबर इज क्या बोला है यहाँ पे, दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. उससे बड़ा ये नंबर है. देख सकते हैं आप थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की वजह से कितना पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट बना. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की वजह से कंट्री की डेवलपमेंट हुई. कभी कभी है ना ऐसा होता है आपके पेपर में कि इसमें का एक आधा सेंटेंस देते हैं और बोलते जस्टिफाई द स्टेटमेंट. जैसे कि यहाँ पे ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ऐसा दे दिया. एंड दे विल आस्क यू नाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट. सो यू हैव टू राइट द पॉजिटिव पॉइंट्स हाउ द लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी, जो भी हमने डिस्कस किए चैप्टर में लास्ट पार्ट में चैप्टर के. It has also increased women's participation and voice in our democracy. अब women's participation कैसे 1/3 सीट रिजर्व है, देखा है हमने. At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Okay, so at the same time, there are many difficulties. Okay, Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local government, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way for realizing the ideal of self government. Yes, तो ऐसा बोला है कि इतना सब हमारे इंडिया में अच्छा चल रहा है और बहुत जगह पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी किया जाता है, बट स्टिल इन सम ऑफ द पार्ट्स यू नो द powers are not fully transferred, or we can say the adequate funds are not given to them, or we can say the Gram Sabhas are not conducted in a regular manner, or sometimes the Gram Sabhas are conducted only for the record purpose and the people's participation has not seen. Okay, people's participation is not found in many of the places. So that's why in the last, while ending the chapter, the statement is given, we are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. So whatever the self-government we are discussing, or we have seen in this example of Brazil, so we are far away from achieving that. So this is what the last part of this chapter, dear students, federalism. So today in this period we have seen the decentralization. What is decentralization? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई द डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये हमने देखा. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है. थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा इस वीडियो में. इस वीडियो में हमने देखा कि कार्टून डिस्कस किया हमने, और हमने देखा लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट इलेक्शंस के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, और ये सब हमने देखा इस वीडियो में. मतलब फेडरलिज्म इंडिया में एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे किया जाता है वो हमने इस वीडियो में टेक्स्ट बुक व्यू के माध्यम से देखा है. विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक व्यू वी हैव सीन दिस पार्ट इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर्स आर गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके डियर स्टूडेंट्स, some activities are given. Find out about the local government in the village town you live. If you live in village, find out the names of the following: your पंच और वार्ड मेंबर, सरपंच, इनके नाम सब ढूंढो, पंचायत समिति के मेंबर्स के, चेयरपर्सन के, जिला परिषद के. आप ये सब एक्टिविटी कर सकते हो. आप इनके नाम एनलिस्ट कर सकते हो. अगर आप सिटी में रहते हो तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर अगर आते हो तो म्यूनसिपल काउंसिलर का नाम ढूंढो, चेयरपर्सन का नाम ढूंढो, चेयरपर्सन और मेयर जिसको बोलेंगे, ठीक है ना.
तो आपको पता ही होंगे सब नाम, नहीं पता होगे तो पता करने पड़ेंगे. Okay, so this is what the activity which they have given. Now see dear students, question and answers are given there. बहुत बार क्वेश्चन रहता है कि कौन से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखने, टेक्स्ट बुक में से कौन से क्वेश्चन नोटबुक में लिखने हैं. अब देखो पहला वाला है लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा. So this you need not to write in the notebook. You just if in the map book it is given, you can practice. Otherwise, you can practice on any of the map. Okay. Now second number question: identify and shade 3 federal countries on a blank outline map. So this even you can do in your map book. If blank maps are there in the map book, if blank maps are there in the map book, you can do in that. देखो पॉलिटिकल साइंस पे कोई मैप क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर विल नॉट बी एनी map question from political science. Okay. Now third, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium. Belgium से similar एक feature आपको ढूंढना है और different feature ढूंढना है federalism का इंडिया की. ये आंसर आपको लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी. ये डिस्कस किया था मैंने पहले की वीडियोस में, एग्जाम्पल के साथ में ये आपको लिखना है. मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, sorry, question number 3, question number 3, question number 4, question number 5. Okay, you have to write in your notebook. State any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992. आज की वीडियो में हमने देखा है 5th क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. State any two differences between the local government 1992 के अमेंडमेंट के पहले की और बाद में की, ये डिफरेंस आपको बताना है जो हमने डिस्कस किया अच्छे तरीके से, जो पॉइंट्स मैंने बोले थे. फिर इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. 7th क्वेश्चन आपको दिया है आर्ग्यूमेंट, गिव एन आर्ग्यूमेंट एंड एग्जांपल टू सपोर्ट एनी ऑफ दिस पोजीशंस. देन 8th आल्सो इन दैट वे एक्टिविटी टाइप ऑफ. एंड 9th क्वेश्चन में आपको कुछ सब्जेक्ट दिए हुए, हमने देखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो उस लिस्ट में आपको पुटअप करने हैं. ये क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स है और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स की पीडीएफ आपको भेजी जाएंगी. यू कैन नोट डाउन द आंसर्स फ्रॉम दैट. बट इन नोटबुक यू हैव टू राइट, आई विल वंस अगेन रिपीट, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 in notebook, and this table even you can write question number 9, because if table you will write, no, so if it will come in exams, it will be easy for you. So question number 9 even you have to write. So this way you have to complete in your notebook. So I hope all the points which we discussed today are clear to you all dear students. You have to read the textbook and you have to write the important points in your revision copy. Now in the next period we are going to start with another chapter from geography. So this is all for this video dear students. One thing I would like to say you that if the video is of textbook view, so you should keep your textbook with you. Either you can see on screen or you can keep your textbook with you. वीडियो अगर टेक्स्ट व्यू का है तो आप टेक्स्ट बुक भी साथ में रख के, टेक्स्ट बुक में देख के, अगर वीडियो भी चल रहा है और टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, आप ऑडियो इसका सुन रहे हो तो भी चलेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा. एंड वन मोर थिंग, the message was sent in the group that about the library facility started at main office, main branch. Once you can see that message also, and if you want to take any of the book you can come in the prescribed timing. So this is what for this video dear students. We'll meet now in the next video. Thank you.